یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم آئے ہیں در پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدا برتر کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین اکرام، اس وقت میں موجود ہوں بدھ کی بارگاہ میں اور یہ پروگرام مسلسل ہم قائم ٹی وی پر آپ دیکھنے کے اور ناظرین کی نشر کرتے ہیں. یہ خاص بارگاہ ہے جہاں پر تمام آپ کی حاجات پوری ہوتی ہیں اور لوگ مسلسل یہاں پر سالوں سے اس بارگاہ میں آ رہے ہیں بغیر کسی رکے، بغیر کسی عذر کے، اور کہتے ہیں یہاں پر جو ایک دلی سکون ہے وہ کہیں نہیں ملتا. اور یہ دور رکعت نماز جو ہے بدھ کی بارگاہ کی اور ایک تسبیح جو کہ ایک مجرب تسبیح ہے، مجرب عمل ہے، آپ اپنی تمام حاجات پوری کرا سکتے ہیں. صدقہ امام موسی کاظم علیہ السلام بارگاہ میں آپ دعا کیجیے اور انشاءاللہ آپ تمام حاجات پوری ہوں گی. ہم آپ کو مسلسل لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کب سے اس بارگاہ میں آ رہے ہیں اور کیا ان کی عقیدت ہے، کیا ان کو یہاں سے اس بارگاہ سے ملا. تو بہت سارے لوگ اپنی الگ الگ باتوں کو شیئر کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کب سے اس بارگاہ میں آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ کب سے جاری ہے ان کا. آئیے آپ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. یعنی جی، اس وقت ہمارے ساتھ بدھ کی بارگاہ میں مسلسل آنے والے مرتضیٰ موجود ہیں اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ ان کا کب سے شروع ہوا اور پہلی دفعہ جو آئے تو کیسا ان کا اتفاق تھا یہاں پر آنے کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا سیدی یا مولائی یا باب الحوائج موسی ابن جعفر ادرکنی ادرکنی ادرکنی. یقیناً ہم اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہیں تو اور اس بدھ کی امام بارگاہ میں کیونکہ خصوصاً بدھ کا دن امام موسی کاظم علیہ السلام سے وابستہ دن ہے بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. تو اس بارگاہ میں لوگ باب الحوائج کی بارگاہ میں آتے ہیں اپنی جھولیاں بھرنے کے لیے، اپنی مرادیں لے کر، اور ہم بھی انہی زائرین کی، انہی جو ہے وہ سائلوں کی فہرست میں ہو کر امام موسی کاظم کی بارگاہ میں ہر بدھ کے دن حاضری بھرتے ہیں اور اپنی دعائیں امام موسی کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرمائے اور تمام ازداران مظلوم کربلا کی پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرمائے. اور یقیناً ایک روحانیت کا، ایک نور کا سلسلہ ہے جو اس بارگاہ میں ہے اور تمام زائرین، ہزاروں کی تعداد میں زائرین صبح سے لے کر رات گئے تک یہاں پہ مسلسل آتے ہیں اور جو ہے وہ اپنی حاجات، اپنی دعائیں باب الحوائج کی بارگاہ میں رکھتے ہیں. پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور میری تو یہی التجا ہے، دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آنکھوں کو دکھا روضہ مظلوم کا منظر، قدموں کو نجف تک بھی کبھی اذن سفر دے. اچھا، کب سے مرتضیٰ یہ آنا کب سے شروع کیا؟ کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ 1 سال ہو گیا مجھے. یہاں پہ جاب میری یہیں قریب میں ہے تو میں کنٹینیوسلی 1 سال سے ہوں. اس سے پہلے بھی کبھی آنا ہوتا تھا، پھر کبھی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جب پریشانی کوئی لاحق ہوتی ہے تو ہم لوگ پھر ریگولر ادھر بدھ کی امام بارگاہ میں آنا شروع کرتے ہیں یا قریب کے کسی امام بارگاہ میں جمعرات جیسے زیارت کے لیے جاتے ہیں کیونکہ شب جمعہ ایک بڑی فضیلت رکھتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی کا دن ہے. تو اسی طریقے سے بدھ کا دن امام موسی کاظم کی بارگاہ کا ہے. تو اکثر پریشانیوں میں جب مبتلا ہوتے تھے تو ہم اسی بارگاہ کا رخ کرتے تھے اور اس بارگاہ سے ہمیں فیضیاب ہوتے تھے اور تمام حاجات ہماری پوری ہوتی. ماشاءاللہ سے سلسلہ آپ کی بہترین طریقے سے. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. خاص دن ہے بدھ کا، خاص بدھ کا دن ہے اور ہماری سب کی یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں جلد از جلد امام موسی کاظم علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب. الہی آمین. آپ کی دعا قبول ہو، ساتھ میں ہمیں بھی زیارت جلد سے جلد نصیب ہو. الہی آمین. سید محمد علی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں ان سے کہ وہ اس بارگاہ میں کب سے آ رہے ہیں اور پہلی دفعہ جو آئے تو کوئی خاص دعا تھی یا کسی نے بتایا تھا یا اب تک جو سلسلہ ہے کب سے جاری ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ کہ آپ نے یہ مجھ سے سعادت دی کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں امام مولا موسی کاظم کے بارے میں، اس امام بارگاہ کے بارے میں. تو ہاں، میں کسی دور میں بہت پریشان ہوا کرتا تھا روزی کے لحاظ سے، کام کے لحاظ سے. تو کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ بہادرآباد جاؤ، بدھ امام بارگاہ آپ 7 بدھ کرو.
बाबुल हवाई हैं वो, तो उनके वसीले जो है ना बहुत कुछ होता है। तो मैंने इसी तरह उसको कंटिन्यू किया और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि मेरा बहुत बदलाव आया, जिसके बाद आज मैं जब भी यहाँ आता हूँ और सुकून पाता हूँ मौला के दर पे। अब भी बाबुल हवाई हैं, आपको पता है ये मौला इमाम मूसा काज़िम। मेरा अकीदा है कि जो भी शख्स दिल से आए और बाबुल हवाइज के सदक़े मांगे, देगा रब मेरा, लेकिन देगा वो बाबुल हवाइज के सदक़े ज़रूर कबूल करेगा। बिल्कुल वसीला तो ज़रूर। मैं लोगों से यही कहता हूँ कि भाई आप जब भी परेशान हो, दर बाबुल हवाइज खुला है, बेशक आप आएँ और दिल की मुरादें पाएँ और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको सुकून मिलेगा ज़िंदगी में। बहुत कुछ आसानियाँ पैदा हुई है मेरे लिए, बहुत आसानियाँ पैदा। तो ये कितना अरसा हो गया आपको आते हुए? मुझे आते हुए यहाँ पर कम से कम 8 साल हो गए, 8 साल। माशाल्लाह। 8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आता हूँ। मुरादें पूरी, यानी जो ख्वाहिशात पूरी भी हो गई, तो फिर भी मैं आता हूँ सुकून के लिए, तसल्ली के लिए। मैं सारे काम छोड़ के, कल तक मैं नौकरी किया करता था, आज मौला परवरदिगार इनके सदक़े या किसी के भी सदक़े मेरा अपना काम हो गया है। और अब मैं बस वो काम 4-5 बजे 6 बजे मेरा प्लान होता है, बुध वाले दिन मुझे वहाँ जाना है, बाबुल हवाइज की हाज़िरी देनी है, नमाज़ पढ़नी है, और मैं यहाँ आता हूँ। सलामत रहिए और इसी तरह आप अपनी दुआओं को पूरा कराते रहिए। मौला आपका इसका सिलसिला जारी रखे और अब हमें भी दुआओं में याद रखें, कायम टीवी को भी याद रखें। जी आपका नाम? मोहम्मद अली। जी इस वक्त मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बुत की बारगाह में ज़ियारत के लिए आए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि कितने अरसे से आप इस बुत की बारगाह में आ रहे हैं और कैसे आए पहले? मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 30 साल तो हो गए होंगे, 30 ईयर्स माशाल्लाह। रेगुलर मुसलसल? हाँ, मेरी यहाँ रैश मेरी यहीं पे नज़दीक में अवंती में, तो आते रहते हम लोग, अल्लाह का शुक्र। तो अब फैमिली आती है सिर्फ? हाँ, नहीं फैमिली भी लेके आता हूँ मैं। अच्छा। कभी अभी मैं नमाज़ पढ़ के महफिल आया, अच्छा। तो मैंने कहा चलो मैं चले जाऊँ, तो फैमिली रेगुलर हर बुध को आते हैं? हाँ तकरीबन। तकरीबन। तो कोशिश करता हूँ मैं रेगुलर आने। तो पहली दफ़ा जब आए थे तो कोई ख़ास दुआ थी या कोई ख़ास था? हाँ नहीं, मतलब भाई वो बेटियों के लिए और ये कभी मकान का प्रॉब्लम मतलब कुछ होता है ना, तो बस हर दुआ पूरी होती चली? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है ये जितना शुक्र कर। बिल्कुल। मैं लोगों को ये मैसेज दे रहा होता हूँ कि ये ख़ास बारगाह है जहाँ से इंसान खाली हाथ नहीं जाता। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, 7 से पहले ही हो जाता है काम। 7 बुध कहते हैं ना सब लोग। जी हाँ, 7 इमाम में तो 7 बुध हाँ, हैं। माशाल्लाह। तो ये मौला का खास करम है कि 7 बुध से ही पहले लोगों के सब मसले हल हो जाते हैं। तो चलें आप भी हमें दुआओं में याद रखिए, कायम टीवी भी देखते रहिए। इस वक्त हमारे साथ बुत की बारगाह में आने वाले ज़ायर सलमान मौजूद हैं और आइए उनसे जानते हैं कि वो कब से इस बारगाह में आ रहे हैं और पहली दफ़ा जब आए तो कैसे सिलसिला शुरू हुआ इस बारगाह में आने का। जी सलमान। वालेकुम सलाम। पहले बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। वैसे तो हम इस जगह को बीबी जॉन के टाइम से जानते हैं और जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे वालिद लेके आते थे हमें, और ये सिलसिला समझने तकरीबन पिछले 30 सालों से चल रहा है। फिर हमने जब होश संभाला, फिर हम खुद आने लग गए, वालिद पर बुज़ुर्ग हो गए, तो उनका इंतकाल हो गया 2012 में। तब से भी हम मतलब कंटिन्यू आ रहे हैं और वो रवायत जो वालिद साहब की थी उसको हमने कायम रखा हुआ है। और बहुत सी मन्नतें मुरादें जो आती हैं उसी तरह से हम भी अपनी बहुत सी मन्नतें मुरादें लेके आते हैं और माशाल्लाह पूरी होती हैं। और ये एजाज़ है इस दर का कि इस दर की हस्तियाँ वो हस्तियाँ हैं जिन्हें अल्लाह ने ख़ास तौर पर चुना है हम इंसानों के लिए। और अगर आपका मुकम्मल और कामिल यकीन है अल्लाह की ज़ात पे और उसके बनाए हुए कानून और पूरे उस निज़ाम पे जिसकी तहत उस परवरदिगार ने नबी खुदा रहमतुल आलमीन को हमारे दरमियान भेजा, अगर आप उस चीज़ को समझते हैं और यकीन रखते हैं तो इससे बेहतर दर और कोई नहीं होगा। कोई नहीं। तो कैसा महसूस करते हैं आने के बाद, क्योंकि ये ख़ास कहते हैं लोग सुकून वाली जगह है? देखिए ये और इस तरह की वो तमाम तरह चीज़ें जो आपको मैसर हैं, अगर आप उन मुक़द्दस मकामात पर नहीं जा सकते जो कि आपके वतन से दूर हैं, तो ये वही मकामात हैं जो उनसे निस्बत रखती हैं। और निस्बतें ही वो चीज़ें हैं जो आपको आपकी मंजिलों की तरफ लेके चलती हैं। देर सवेर हर चीज़ में है, लेकिन ये वो निस्बतें हैं जो कि आइम्मा से और फिर आइम्मा के बाद वो रसूल खुदा से बिल्कुल वैसी जुड़ी हैं जैसे वो हौज़ कौसर तक जाएंगे तो अहले बैत और रसूल खुदा खुद चल के हौज़ कौसर तक इकट्ठे जाएंगे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहिए सलमान, और आप देखते रहिए कायम टीवी। हमें अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें, कायम टीवी को भी, हमारे नाज़रीन को भी ये ख़ास मैसेज है, क्योंकि मैं इस बुत का
پروگرام روز ہر بدھ کو کرنے کا مقصد یہی ہے کیونکہ یہ لوگوں کو اس جگہ کی اس بارگاہ کی آگاہی ہو کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کراچی والوں کے لیے کیسا تحفہ ہے کہ انسان جب یہاں پریشانی میں آتا ہے تو کیسا آپ اس بارے میں کیا کچھ میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے خالی یہ محبان اہل بیت مطلب خالی یہ اہل تشیعوں تک کہتے ہیں نا ایسے آپ لمیٹڈ نہیں ہیں. اس میں کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کے مسلک سے ہٹ کے ہیں لیکن وہ بھی آتے ہیں, اور کچھ ان میں سے میرے خاص طور پہ دوست ہیں جو کہ کافی نسبت رکھتے ہیں, ان کی کافی ان سے سمجھ لیں قربت ہے خاندان اہل بیت سے, تو وہ بھی آتے ہیں اور وہ بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں اور کافی تر ان کی بھی دعائیں مناجات اور جتنی بھی حاجات ہیں شرعی وہ قبول ہوتی ہیں. تو وہ ان کی بھی سمجھ لیں ایک دل سے انسیت ہے کہ وہ ان سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں نہ صرف کراچی والوں کے لیے بلکہ تمام تر پاکستان میں جہاں بھی ایسے مقدس مقامات ہیں جو کہ آل رسول سے کنیکٹڈ ہیں اور ان کی نسلوں سے ہیں منسوب ہیں, تو ان کی ہر درگاہ پہ جانا چاہیے. یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم, آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی, آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی, ہے سب کو یقین کوئی بھی پھیرا نہیں خالی. یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم. اچھا, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بدھ کی بارگاہ میں مبین فاطمہ صاحبہ اور ان کی صاحبزادی ہیں, بیٹی ہیں. آئیے جانتے ہیں ان سے کہ وہ مسلسل کب سے اس بارگاہ میں آ رہی ہیں اور آج خاص مٹھائی بھی لے کر آئی ہیں, تو کیا سلسلہ ہے, کیونکہ یہ بارگاہ ایسی خاص ہے کہ جو بھی یہاں آتا ہے وہ اپنی ضرور حاجات پوری کرا کے جاتا ہے. تو کب سے آ رہی ہیں اور اپنی سب سارے خاندان کو لے کر آتی ہیں ماشاءاللہ سے, تھوڑا سا ان سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. آپ کب سے آ رہی ہیں, کب سے بدھ کی بارگاہ میں آ رہی ہیں؟ یہاں امام بارگاہ میں آپ کب سے آ رہی ہیں؟ جاتے دعا مانگتے ہیں. اچھا, تو اب آپ مجھے تھوڑا سا آپ امی کی طرف سے بتائیے کہ امی کتنے عرصے سے آ رہی ہیں اور آپ سب یہ عرصے جب سے ہم ہیں چھوٹے سے تھے پھر بڑے ہوئے, ظاہر ہے امی ہماری والدہ ہمیں لے کر آتی ہیں امام بارگاہوں میں, دعائیں مانگتے ہیں, تسبیحات نماز پڑھتے ہیں اور پھر ظاہر مولا ہماری حاجتوں کو قبول کرتے ہیں. تو یہ بدھ کی بارگاہ میں ماشاءاللہ سے یہ آپ کو کتنا کافی سال ہو چکے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ؟ جی 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 ماشاءاللہ سے بچے جی 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 ایسے ہی جی 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 بالکل. تو ماشاءاللہ سے بدھ کا دن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر آ کے جو سکون اور جو راحت ملتی ہے, سکون ملتا ہے, وہ بہت اچھا لگتا ہے. اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں, تسبیحات پڑھی جاتی ہیں, اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں, سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے مولا سے اپنے گناہوں کی توبہ بھی کرتے ہیں, ہم معافی بھی مانگتے ہیں اور ہمیں اپنے در سے خالی نہیں بھیجتے. یہ مولا کا بڑا کرم ہے, احسان ہے کہ ہماری حاجتوں کو قبول کرتے. آج کوئی خاص دعا لے کر آئی تھی یا وہ پوری ہوئی ہے منت یا ایسی؟ نہیں, ہم دعا مانگنے کے لیے آئے ہیں آج. اچھا, ہاں سب ماشاءاللہ سے پوری فیملی. جی 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 بالکل. اللہ میں آپ کی تمام حاجات پوری کرائیں اور آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ذیشان حسین صاحب اور ان کی مسز موجود ہیں اور آئیے جانتے ہیں ان سے کہ وہ اس بارگاہ میں کب سے آ رہے ہیں اور کیسے اتفاق ہوا آنے کا, کتنے برس ہو چکے ہیں ان کو یہاں آتے ہوئے, کوئی خاص دعا ہے جو ان کو یہاں تک لے کر آئی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بس ہمیں ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہے ہماری دعا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ مولا ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ, اور ہمیں امید ہے پوری اور انہی کے در سے ہمیں امید ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ہماری امید پوری ہوگی انشاءاللہ. یہ تو بالکل, یہ تو ہر پہ آخرے کے بعد آپ کی انشاءاللہ اس بہت جلد بدھ میں پوری ہو جائے گی. تو جب میں سمجھتا ہوں کہ میری تو خود آزمائی بھی چیز ہے کیونکہ میں سالوں سے آ رہا ہوں, تو جب بدھ کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو اس کے اوپر بدھ کی مہر لگتی ہے اور وہ بدھ کے ہی دن کام ہوتا ہے. زیادہ تر جو کام یہاں سے ہوتا ہے, یہاں کی دعا پوری ہوتی ہے, وہ خاص بدھ کے دن ہی ہوتی ہے اور بدھ کے دن کی مہر لگ جاتی ہے کہ ہاں ہماری طرف سے ہوئی ہے. اچھا, آپ کی نالج, آپ نے مجھے جو ہے نالج دی ہے, مجھے نئی چیز کا اضافہ ہوا ہے, آپ خود بہت اچھا ہوا ہے اور یہ خود آپ پتہ چلے گا مجھے آپ کو. جی, آپ یہ خود جب دیکھیں گے جب آپ کی کوئی دعا جو آپ لے کر آ رہے ہیں. اچھا, ایک اور چیز آپ نے تو مجھے بتائی ہے ابھی, لیکن میں پہلے جب بدھ آیا نا
तो मैंने बोला जो मेरा काम है ना वो बुध वाले दिन होगा। हाँ। यकीन करें मेरे दिल के अंदर यही था। बुध का दिन जो है ना जी, और ऐसे ही होता है कि जो मुसलसल जी, लेकिन मेरे दिल में था कि बुध वाले दिन ही होगा काम। और आप ही देखेंगे कि आप जैसे मुसलसल आते रहेंगे तो आपका बुध का दिन जो है आपका लकी डे हो जाएगा और आपकी तमाम जो मुश्किलें वो बुध के दिन हल हुआ करेंगी। ये ख़ास इस बुध की बारगाह का मौजज़ा है, ये मैं अपने बता रहा हूँ। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आपने शायद यहाँ पर नोट भी है कि यहाँ पर ख़ास जो कि लेडीज़ में मिलता है, 10 रुपये का नोट वो देते हैं और ये भी वो बहुत ख़ास नोट है। आप 10 रुपये का नोट लें यहाँ से और वो मन्नत के तौर पे अपने पास रखें और इंशाल्लाह वो 10 का नोट भी इतनी जल्दी आपकी मन्नत को पूरा करता है। फिर जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो वो 10 का नोट आप यहाँ लाएँ और उसमें 500 रुपये शामिल करें। 50 नोट 10-10 के इनको देने होते हैं मन्नत पूरी होने के बाद, तो वो यहीं पे ही तकसीम होते हैं। वो जो खादमा हैं या जो ये आपको रेवड़ी हैं और ये जो दे रहे हैं यहाँ पर अगरबत्ती हैं, उनके पास से आप कहें कि हमें मन्नत के लिए 10 का नोट दीजिए, वो आप लेके जाएं। और वो इतना मुजर्रब नोट है कि मैंने कितने नोट बांटे मुझे नहीं पता वो, और हर बंदे की मन्नत पूरी हुई। तो आप जब यहाँ से आएँगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो तो मौला का दर है, अस्सलाम वालेकुम, ये मौला का दर है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ये तो अच्छा, आप मर गए वैसे भी जहाँ जहाँ गाजी के आलम में जहाँ जहाँ बड़ी दरगाह है वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया, क्योंकि ये बाबुल हवाइज हैं और इन्हें ख़ास बाबुल हवाइज है, बड़ी बात है। इस दरगाह में जो हज़ारों तस्बीहें पढ़ी जाती हैं सुबह फजर से लेके रात देर तक, तो ये उसका असर है कि आपकी तमाम हाजात तमाम और सुकून आपको ऐसा मिलता है यहाँ। ज़हनी सुकून मिलता है, बहुत आपका शुक्रिया सर। इंशाल्लाह अब मैं यहीं आपको मिलूंगा जब आपकी दुआ पूरी होगी तो आप मुझे आके बताएंगे खबर होगी। ओके बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपको बताएंगे ज़रूर। सलामत रहिए। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ वक़ार साहब मौजूद हैं जो मुसलसल बुत की बारगाह में शायद आते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कब से इस बारगाह में आ रहे हैं और कैसा महसूस करते हैं इस बारगाह में, क्योंकि लोग कहते हैं बहुत सुकून है। जी सर। जी वालेकुम सलाम। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ जब मैं क्लास 9th या 10th में था। अरे माशाल्लाह। इट्स अबाउट 30-35 ईयर्स। माशाल्लाह। और सुकून मिलता है, रूहानी बारगाह है बेशक, तो इसलिए आते हैं यहाँ पर। तो मुसलसल अपनी जो हाजात का सिलसिला है बुत की बारगाह से, बात हाजात की नहीं है, एक दिल का वो दिल का, हाँ मतलब एक सुकून है जो मतलब पूरे दुआ तो हम कहीं पे भी मार सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर ज़रा सुकून मिलता है, सुकून मिलता है, रूहानी सुकून मिलता है। अच्छा, तो आप, मैं ये समझता हूँ कि अगर बुत की बारगाह का जो एक ख़ास एक दुआ पूरी होने का जो दिन है वो बोल है, ये भी एक रवायत है यहाँ पर कि 7 बुत को मुसलसल आएँ और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जो तस्बीह है उसको अदा करें। जी, मैं आप तो माशाल्लाह से बहुत अरसे से ड्यूटी कर रहे हैं ना यहाँ पर? 6 साल हो गया। 6 साल हो गए। 6 साल हो गया। मौला का करम है, परवरदिगार का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला हम लोगों को और सब पश्चिम पाक को कामयाब करे। इलाही आमीन। रब्बिल आलमीन तुम लोगों को भी कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अभी सर मेरा बस थोड़ा सा मसला है, पालिश का आटे गए हुए, तो अभी 1.5 महीने हो गया मैं घर में पढ़ूँ, मगर मैं फिर भी इसके बावजूद मौला के दर पर आती हूँ। सेहत देने वाले वो, ये सेहत देने वाले, बेशक बेशक। और आप देखिए मसले से खड़े हैं, फालिज के बावजूद आप यहाँ पर खड़े, बहुत बड़ा मौजज़ा है। और आपको क्योंकि ख़ास ड्यूटी है कि आप लोगों को यहाँ पर तरतीब करा रहे होते हैं, तो ये पार्किंग का ड्यूटी कराता है। आप सर मेरे को जानते हैं। जी जी जी। हम सैयद हैं, सैयद अली हुसैन मेरा नाम है। माशाल्लाह। ठीक है सर। जी जनाब। मौला आपको सलामत रखे। मौला तुम लोगों का और तौफीक दे कि मुल्क और लोगों का खिदमत करें। बिल्कुल इलाही आमीन। मौला पाकिस्तान को सलामत रखे। जी, हमारे साथ इस वक्त फुरकान अली साहब मौजूद हैं जो कि मुसलसल बुत की बारगाह में आ रहे हैं, और आइए जानते हैं उनसे कि वो कब से इस बारगाह में आ रहे हैं और रूहानियत का एक सिलसिला है इस बारगाह में, और जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता, तो वो क्या कहते हैं इस बारे में, कैसा? जी आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं यहाँ पे तकरीबन गुज़िश्ता 15-18 साल तो मेरे हो गए इस बारगाह पे आते हुए, और ऐसा नहीं कि मुस्तकिल यहाँ पे आते हैं, लेकिन जब भी किसी किस्म की परेशानी वगैरह का ऐसा लाइफ में फेजेस आते हैं तो कभी उस सिलसिले में भी और कभी ऐसे भी एक रूहानी राब्ता होना चाहिए। हर दफ़ा ऐसा तो नहीं कि ज़रूरत पड़ने पे ये दर को याद किया, तो चलता रहता सिलसिला। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दर ऐसा है कि यहाँ से कभी भी खाली हाथ कोई भी नहीं लौटता, दुश्मन भी नहीं लौटता, तो हम बिल्कुल ज़बान से भी सही नाम तो लेते हैं। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि लोगों से मैंने ये भी सुना है और मेरे साथ ख़ुद भी ऐसा इत्तेफाक है कि जब बुत की बारगाह से कोई दुआ कबूल होती है तो ख़ास वो बुत का ही दिन स्टैम्प लगता है, वो ख़ास बुत का ही दिन होता है, और वो बहुत सारे लोगों के लिए लकी डे हो जाता है। ऐसा है?
एक दफ़ा मेरा ऐसा इत्तेफाक हुआ है, एक से ज़्यादा दफ़ा मैंने ऑब्ज़र्व नहीं किया, लेकिन एक दफ़ा मैंने ऑब्ज़र्व इसलिए किया है कि मैं शायद तकरीबन 2006 की बात है, और उस वक्त मैं इसी तरीके से जॉब वगैरह के मसाइल के लिए काफ़ी परेशान था, और मैं 7वां बुध था मेरा, और मैं यहाँ बाहर निकला था और मुझे कॉल आई थी, और उसके बाद मैं दुबई चला गया था और तकरीबन 2017 तक वहीं रहा था। 10 साल 10-11 साल वहीं पे मेरे गुजारे, और काफ़ी अच्छा सिलसिला रहा। तो वो एक मेरे यादगार है कि मैं यहाँ से आया था और बाहर आते ही मुझे ये मौला के तवस्सुल से खुशखबरी मिली। तो ऐसा इत्तेफाक एक दफ़ा हुआ। ये ख़ास दर है, और आप उसमें हमें भी दुआ में याद रखें, कायम टीवी के तमाम देखने वाले नाज़रीन को, और आप हमारी दुआ में बिल्कुल मोहताज है दुआ। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अली हुसैन साहब और उनकी पूरी फैमिली मौजूद है, जो कि आज ज़ियारत के लिए और ख़ास दुआ के लिए आई है। तो हमारी भी इनकी इतनी दुआ है कि परवरदिगार आलम इनकी तमाम हाजात पूरी करे। आइए जानते हैं कि कब से इस बारगाह को जानते हैं, क्योंकि ये बारगाह एक ऐसी रूहानियत का मरकज़ है कि जो भी आता है ख़ास अपनी दुआओं को पूरा करा के जाता है। तो जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कब से ये आपका आने का इत्तेफाक? काफ़ी टाइम से है, मतलब 15-20 साल से माथे, बीच में कभी कभी वक्फा हो जाता है तो नहीं आ सके तो नहीं। तो ये कोई ख़ास दुआ हुई तो फिर आपने आना है? नहीं, हर दुआ का यहाँ आते मांगते, जो भी आए उसके लिए दुआएं कबूल। 7 बुध का भी मानते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा कबूल होती है। वैसे भी 1 बुध का भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ज़्यादा, तो 1 बुध को भी आते, दुआएं माशाल्लाह बहुत कबूल होती हैं। यहाँ पे 7वें इमाम के का रोज़ा है ये, और उसके वसीले से इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होती है। आप मुसलसल काफ़ी टाइम ये कि अकीदा होना चाहिए, अकीदा सच्चा होना चाहिए इंसान का। ये हर चीज़ में बिल्कुल बिल्कुल कि आप जो भी दुआ करें वो दिल से करें, और मौला को सुन रहे हैं, अल्लाह सुन रहे हैं उनके वसीले से। बिल्कुल। तो ये आपका कितना, मतलब काफ़ी टाइम आपको भी इसी तरह होता है? जी, हम लोग काफ़ी टाइम से पहले आते थे, काफ़ी आते थे। आजकल अभी थोड़ा कम हो गया है ना, अच्छा, मसरूफियात की वजह से कुछ। तो कभी लेकिन तस्बीह ऐसे होते, लोग घर में पढ़ रहे होते, बुध का दिन आता है। हम हर बुध को पढ़ते हैं माशाल्लाह, हर बुध को पढ़ती हूँ, और माशाल्लाह बहुत फलती है। कबूल करने वाला तो वो ऊपर वाला ही है, बेशक। सबके लिए ये दुआ करते हैं, यही तरीका है हमारे पास, बाकी इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। बेशक, जब तक ज़िंदगी दी अल्लाह ने, इंशाल्लाह आते रहते हैं। बिल्कुल, आप सलामत रहिए और आते रहिए, हमें दुआओं में याद रखिए कायम टीवी को। बहुत शुक्रिया। दुआ अल्लाह सबको मन में रखे, सलामत। बहुत शुक्रिया। अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बुध की बारगाह में अभी ज़ियारत करके वापस निकल रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो भी मुसलसल काफ़ी टाइम से आ रहे होंगे, या पहला बुध होगा क्या इनका सिलसिला है ज़ियारत का, और कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि एक ये ऐसी जगह है कि जब इंसान आता है तो यहाँ बहुत सुकून। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। मुझे नहीं याद है कि मैं कब से यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा। और ये कि शाद नादिर कोई मिस हुआ होता है तो उस दिन तबीयत बड़ी अजीब सी कैफियत हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन मैं करीम अपने करीम का घराना है, दर है, तो ये भी समझते हैं मजबूरी वगैरह। बहुत ख़ास जब होता है जब इंसान मिस हो जाता है। तो बस ये है कि जब परेशानियों में और तमाम मुश्किलात में और दुनियावी मसाइल लेकर आते हैं कि जो कि नामुमकिनात में से होते हैं, लेकिन जब इस दर से गुजरते हैं तो दिल इतना हल्का होता है और ज़हन इतना हल्का होता है कि मतलब अल्फाज नहीं है। तो माशाल्लाह से ज़माने से काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। और पूरी फैमिली आती है? मतलब मैं रेगुलर हूँ। अच्छा। और फैमिली पे ये ऐसे मामलात है कि मैंने उन पे छोड़ दिया। आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो नहीं आओ, तुम्हारी मर्जी, जो आएगा वो पाएगा। लेकिन ये है कि मैं चाहे कभी बाज़ मरतबा ऐसा भी हुआ है कि देर सवेर हो जाती है, दरवाज़ा बंद भी, तो लेकिन आता ज़रूर हूँ मैं, तस्बीह पढ़ के चले गए बाहर से खड़े होकर, क्योंकि दिल को सुकून होता है कि हम दरवाजे पे ही चाहे। और एक मज़े की बात बताऊँ जी, कि मैं कुछ ऐसे अहले सुन्नत बरादरान को जानता हूँ कि जो पहले मिलना तक पसंद नहीं करते, मतलब मिलने से मुराद बातचीत करना, साथ खाना पीना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब मैं अक्सर उनको यहाँ देख पाता हूँ। वाह। तो बेशक ये ज़र का सदका है, ये मौज़ा है, क्योंकि ये करीम अपने करीम का घराना है, हर एक के लिए खुला है। बेशक बेशक। तो बस जो आता है वो यहाँ से पाके जाता है, मतलब ये जो दूर है वो बदकिस्मत है कि वो दूर है, लेकिन जो आ रहा है वो मुसलसल पा रहा है। तो ये मेरे बुध के प्रोग्राम का यही हासिल है कि मैं लोगों को मैसेज दे रहा हूँ कि वो ख़ास जगह है कि जो इंसान आता है तो खाली हाथ नहीं है, तमाम अपनी मुश्किलों को यहीं छोड़ जाते हैं पूरे हफ्ते के लिए। ऐसा ही है? ऐसा ही है। सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। बुध की बारगाह में मुझे कम से कम 30-40 साल हो गए।
30-40 साल माशाल्लाह। जी। तो आप सारे बच्चे और सबको साथ लेकर? सब हम मेरी बेटी है मेरे साथ, मेरी पोती है मेरे साथ, हमेशा आते रहती हूँ। अच्छा जी। तो ख़ास दुआओं का सिलसिला है और या मतलब बस मुसलसल आना है बस? नहीं, देखें दुआ तो मौला आपके दिल में हो और नीयत हो, कबूल करने वाले हैं। लेकिन एक जगह और एक मुकर्रर कर दी जाती है, तो वहाँ बैठ के कुछ अमल बैठ के पढ़ लिए जाते हैं, कर लिए जाते हैं। तो उसमें 4 के मिल के जो होता है, आपकी दुआ में असर है, मेरी में नहीं है। बिल्कुल, ये खास दर है, खास बस है इस दर में। जी। और फिर बाबुल हवाई जी, बाबुल हवाई से जी जी बस। तो आंटी आप तकरीबन 30-35 साल से आ रही हैं? जी हाँ, बराबर। तो माशाल्लाह से आपने कोई ख़ास वाक़या जो आपने कोई ख़ास ऐसी दुआ जो मतलब आपने की हो? मैंने हमेशा नोट नहीं करी है कि दुआ, देखिए ना, दुआ तो आपके दिल में है। और मैंने हमेशा कोई किसी अलम पे लग के खड़े होके, जैसे लोग करते हैं कि तस्बीह खड़े होके पढ़े जा रहे हैं, मैं यहाँ से भी दिल में नियत करूँगी तो मेरे इमाम सुनने वाले हैं और मुराद जी बस। तो मुराद मौला आपकी तमाम हाजात पूरी करें और आप इसी तरह आती रहें और आपको सेहत व सलामती अता हो। जी नाज़रीन, इस वक्त मुसलसल लोग अपनी बता रहे हैं कि हम कब से आ रहे हैं, और ये वो ख़ास बारगाह है कि जहाँ पर जो भी आता है अपनी तमाम हाजात पूरी करा कर जाता है। आइए चलते हैं अंदर और ज़ियारत करते हैं। लोगों से बातचीत तो काफ़ी हुई, और मज़ीद बातचीत करते हैं लोगों से, जानते हैं कि वो इस बारगाह के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ ये वो ख़ास बारगाह है जहाँ पर दिली सुकून है, इत्मीनान है, और अगर आप आते हैं तो आपकी तमाम हाजात जो हैं वो मुसलसल पूरी होती हैं, और कोई दुआ ऐसी नहीं है जो रद्द हो जाए। तो ये ख़ास वो बारगाह है जो इंसान यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। मेरा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिलीव है, क्योंकि मैं मुसलसल 12 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ, और जो मेरा माशाल्लाह से दिन है बुध का, वो लकी है। जो मेरे रुके हुए काम हैं वो यहाँ से पूरे होते हैं। और यहाँ पर 2 रकअत नमाज है जो कि आप पढ़ते हैं बुध की बारगाह में, इमाम मूसा काज़िम को हदिया करते हैं, और उस 2 रकअत नमाज में अलहम्द के बाद 12-12 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी होती है। ये ख़ास 2 रकअत नमाज है जो कि इमाम मूसा काज़िम को आप हदिया करें, साथ दुरूद की तस्बीह, और यहाँ पढ़ें या सैयदी या मौला या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज अदरिकिनी अदरिकिनी अदरिकिनी। ये ख़ास तस्बीह है, ये ख़ास मुजरब अमल है जो आपको आपकी तमाम मुश्किलों से दूर ले जाता है, और आप हर तरह की परेशानियों से महफूज हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख़ावर रज़ा नक़वी, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। जी नाज़रीन, लोग अपने मुसलसल यहाँ पर मोइज़ाती सिलसिले बता रहे हैं, और हम आइए चलते हैं अंदर और यहाँ पर अंदर चल के ज़ियारत करते हैं। ये वो ख़ास बारगाह है कि आने वालों की तमाम हाजात को पूरा करती है, और कोई खाली हाथ नहीं जाता। या सैयदी या मौलाई या मूसी काज़िम या बाबुल हवाइज मेरे या मूसी काज़िम, आए हैं दर पे आपके हम बन के सवाली, आए हैं दर पे आपके बन के सवाली। या सैयदी या मौलाई या मूसी काज़िम या बाबुल हवाइज मेरे या मूसी काज़िम, आए हैं दर पे आपके हम बन के सवाली, आए हैं दर पे आपके हम बन के सवाली, है सबको यकीन कोई भी फेरा नहीं खाली। या सैयदी या मौलाई या मूसी काज़िम या बाबुल हवाइज मेरे या मूसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद नवाब हूँ और अहले सुन्नत से हूँ, और ये कोई बात नहीं है कि आप अहले तशय्युअ हैं, अहले सुन्नत हैं। कुछ मराकिज़ और कुछ
परवरदिगार ने मुक़द्दस जगहें ऐसी रखी हैं कि वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ 93 से आ रहा हूँ और ये जो जगह है जिसको बुधवारे का नाम दिया गया है कि बुध के दिन ही ये मखसूसी है, यहाँ बशारत हुई थी और लोग यहाँ आते हैं। और मेरी ख़ुद भी एक मन्नत थी कि मेरी बहन थी, उनकी यहाँ जो पहली औलाद हुई तो वो मुर्दा हुई, उसके बाद फिर मुझे किसी ने कहा कि यहाँ मन्नत माने। आप यकीन कीजिएगा 7वां बुध था और मैंने तस्बीह पढ़ी और दुआ की परवरदिगार के हुजूर के, परवरदिगार या अल्लाह या रहमान और रहीम, अपने इन मकबूल बंदों के सदक़े में यहाँ के मैंने दुआ की। तो 7वां बुध था और मैं घर पहुँचा हूँ 7वें बुध। तो मेरे बहनोई खुशखबरी लेके आए कि भाई मुबारक हो और तुम्हारे यहाँ तुम मामू बन गए और बेटा हुआ है माशाल्लाह। तो बस वो दीन जनाब अली। और ये इसके अलावा भी यहाँ मैंने और भी देखे हैं, अपने अहले सुन्नत भाइयों को देखा है माशाल्लाह, और इसमें कोई वो नहीं है, इम्तियाज़ नहीं है। और तमाम लोग जाते हैं, जिस तरह के हज़रत अब्दुल्ला शाह क़ादी के मज़ार पे दानिश फरबा शंकर कनेरिया टेस्ट प्लेयर हैं, उनकी पूरी फैमिली वहाँ जाती रही है, लोग अभी भी जाते हैं। तो इसको इस निगाह से नहीं देखना चाहिए। ये जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं यहाँ लोग आते हैं, अपनी मुरादें मानते हैं, तभी तो आते हैं वो, अब वरना यहाँ क्यों आए। और इतने अरसे से यहाँ आ रहे हैं, एक ही ज़माना है। और बीबी जॉन थी, उन्होंने ये काम किया था, परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद करे। और आजकल जो इसके इंतज़ाम देख रहे हैं उनकी भी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो। बड़े बड़े मैंने लोगों को यहाँ देखा है, उलमाए कराम को देखा है, वो यहाँ आते रहे माशाल्लाह। और हम आज भी यहाँ जब भी मौका मिलता है तो यहाँ आते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमको ये साथ करें, अब जब भी मौका मिलता है कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आएँ और यहाँ आके एक सुकून मिलता है जनाब अली। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बुद्ध की बारगाह के उस जगह पर जहाँ पर नमाज़ें अदा की जाती हैं। ये 2 रकअत नमाज अदा की जाती है और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को हदिया की जाती है, या सैयदी या मौला या मूसा इब्न बाबुल हवाई जद्र की तस्बीह पढ़ी जाती है। और ये वो ख़ास तस्बीह है जो आपकी तमाम हाजात को पूरा करती है। आइए हम इस बारगाह की ज़ियारत करते हैं। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। या सैयदी या मौला। इस 2 रकअत नमाज में अदम के बाद 12 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी जाती है और फिर आप अपनी नमाज को तमाम करते हैं। मूसी काज़िम हम वास्ता देते हैं शहे करबो बला का, हम वास्ता देते हैं शहे करबो बला का, और ज़ैनब कुलसूम। बड़ी तादाद में लोग इस वक्त बुद्ध की बारगाह की तरफ रुख करते हैं और ये ख़ास टाइम है जिस वक्त रश बढ़ता चला जाता है और रात देर तक यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं। आप इस वक्त ज़ियारत कर रहे हैं, ख़ास उस दर की बुद्ध की बारगाह में मौजूद हैं। आप हमारी दुआ में शामिल हैं। करे सजाद रो रो के मैं मरे जांदा नशामादा, ऊना 18 दस्तारा तो एक चादर दा गम बदिए, ऊना 18 दस्तारा तो एक चादर दा गम बदिए, इसिक चादर दे बदले मेरा सर जांदा नशामादा, कवे सजाद रो रो के मैं मरे जांदा नशामादा।